Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this online session of classes. So as we all know, we are doing chapter number 4 and that is principle of mathematical induction. And in the previous session we did one question, that was the very first question of the exercise. Today we shall be doing some more questions from the exercise 4.1 which is based upon PMI, that is principle of mathematical induction. Now I have written on the board this question number 8, that is 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus up to so on plus n into 2 raised to power n is equals to n minus 1 into 2 raised to power n plus 1 plus 2. ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने प्रूव करना है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. सिर्फ ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो पीएमआई है, principle of mathematical induction, it is only applicable for the natural numbers. So let us start our question. So first of all, you have to consider this statement as p of n. तो सबसे पहले आपको एक काम क्या करना है? Let p of n be such that आपको जो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन को, उसको क्या एज्यूम कर लीजिए? p of n. ठीक है. अब प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? n को 1 पुट करके प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो पुट n इक्वल्स टू 1 and in this left hand side is equals to, and since left hand side में भी आपको पूरी सीरीज कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. either you can take the very first term or you can consider the last term. फर्स्ट टर्म अगर आप कंसीडर करेंगे, देखें दैट्स नॉट 1.2, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, 1 into 2. So 1 into 2 is equals to 2. आप लास्ट टर्म कंसीडर करेंगे तो भी यही आएगा. n की वैल्यू को 1 पुट करना है. 1 into 2 raised to power 1, that is 1 into 2 will 2 only. Now right hand side क्या हो जाएगा? सिर्फ n की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए. 1 minus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 plus 2. 1 minus 1 is 0. 0 into 2 plus square plus 2. 0 into anything will give you 0 and 0 plus 2 will give you 2. So left hand side was 2, right hand side is also 2, so left hand side is equals to right hand side. Left hand side is equals to right hand side. Therefore p of 1 is true. आपने स्टेटमेंट को क्या एज्यूम किया था? p of n. क्या एज्यूम किया था? p of n. n की वैल्यू आपने 1 पुट करी है तो क्या हो जाएगा? p of 1. क्योंकि n को आपने 1 पुट किया, p of 1 is true. That means left hand side is equals to right hand side. Second step is you have to assume that this statement is true for n equals to k. n equals to k के लिए आप लोगों ने इसको प्रूव करना है. So let us assume, n equals to k के लिए प्रूव नहीं करना, एज्यूम करना है. प्रिंसिपल आप लोग को याद होगा. फर्स्ट स्टेप क्या है? n की वैल्यू को 1 पुट करके प्रूव करना है. सेकंड, n की वैल्यू को k पुट करके एज्यूम करना है कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है. और थर्ड स्टेप में आपको n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. सो लेट अस assume that p of n is true for n equals to k, where k belongs to natural number, जहां पे k किसको बिलोंग करता है? स्मॉल k, नेचुरल नंबर. ठीक है. दैट इज p of k. अब n की वैल्यू को आपने क्या पुट करना है? k. तो क्या हो जाएगा? p of k be such that 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus up to so on. कहां तक? k into 2 raised to power k is equals to k minus 1, 2 raised to power k plus 1 plus 2. आपने क्या किया? पूरी स्टेटमेंट में n की वैल्यू को क्या पुट कर दिया? k पुट कर दिया. नाउ third step is name this equation as equation number 1, and the third step is you have to prove for n equals to k plus 1 that the given statement is true. So now we have to prove that p of n is true for n equals to k plus 1.
थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि गिवन स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। मतलब n की वैल्यू को आपने k प्लस वन पुट करके प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट मींस दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल्स टू k प्लस वन के लिए। लेट अस गो फॉर दैट p ऑफ k प्लस वन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि जब भी आप n की वैल्यू को k प्लस वन पुट कर रहे हैं, बेहतर है कि यू शुड पुट दैट वैल्यू इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में पुट करेंगे तभी सही होगा। 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वेयर प्लस 3 इंटू टू क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। कहां तक n की वैल्यू को क्या पुट करना है, k प्लस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन इज इक्वल टू n की वैल्यू को क्या पुट करना है, k प्लस वन। तो n की वैल्यू को आपने पुट किया, लेकिन साथ में क्या है, माइनस वन इंटू टू रेज टू पावर n की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, k प्लस वन। n की वैल्यू को क्या पुट किया, k प्लस वन, साथ में क्या है, प्लस वन और नीचे प्लस टू। तो कितना हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन एलिमिनेटेड, k इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन कितना हो जाएगा, k प्लस टू, सो प्लस टू। ऑलराइट, तब आप लोगों ने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग फिर से लिख सकते हैं, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वेयर प्लस 3 इंटू टू क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है, k प्लस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म k प्लस वन वाली टर्म है, तो पीछे वाली टर्म क्या उससे आ जाएगी, बैकवर्ड ऑर्डर में k वाली टर्म। फ्रंट ऑर्डर में जाएंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। लास्ट से शुरू कर रहे हैं तो अगर ये k प्लस वन वाली टर्म है तो पिछली टर्म कौन सी होगी, प्रीवियस टर्म k वाली टर्म। मतलब k प्लस वन की जगह क्या पुट कर दीजिए, k पुट कर दीजिए, दैट इज k इंटू टू रेज टू पावर k। अगर ऐसे भी क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि क्या पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर वन की जो लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म है वही इस इक्वेशन की क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड लास्ट टर्म। The last term of the left hand side of equation number 1 will be the second last term of this equation, that is when you have put n equals to k plus 1. Now this you have to prove. Let us take left hand side. So left hand side में थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं from equation number 1. देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 देख रहे आप ध्यान से, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरी कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वेयर प्लस 3 इंटू टू क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k इंटू टू की पावर k प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज़ पावर k प्लस वन। इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स, अगर आप इसको यहां से लेकर यहां तक कंसीडर करें, इसलिए मैंने वैल्यू भी पुट की है। ये सीरीज है, सीरीज में बहुत सारी टर्म्स, बट डज द डैशेस शोस, ये डैश के शो करें कि सर बहुत सारी टर्म्स बीच में आ रही हैं। कहां तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। सो अब 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k इंटू टू की पावर k। यहां तक की वैल्यू किसकी इक्वल है, आप लोगों ने एज्यूम किया है कि ये क्या है, ट्रू है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसकी वैल्यू ये पुट कर दीजिए, k माइनस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन प्लस टू। ये वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आपने ये वैल्यू यहां तक पुट करी थी। आगे क्या है, प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज़ टू पावर k प्लस वन। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपने इसके इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 2 को आप साइड में लिख लीजिए, k माइनस वन इंटू टू रेज़ टू पावर k प्लस वन। पहले सेकेंड टर्म को लिख लीजिए, प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज़ टू पावर k प्लस वन, लास्ट में प्लस टू। उसके आगे अब देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, और वो है टू रेज़ टू पावर k प्लस वन। तो कॉमन ले लीजिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से अंदर क्या बचेगा, k माइनस वन साथ में प्लस k प्लस वन। नाउ थर्ड टर्म में कुछ कॉमन नहीं था, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करके लिख दीजिए, प्लस टू। थोड़ा सॉल्व करते हैं, टू रेज़ टू पावर k प्लस वन। Now minus 1 and plus 1 got eliminated. K plus k will give you 2k into 2k and plus 2. एक और स्टेप बन सकता है इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 2 की पावर क्या है, अगर कुछ भी पावर नहीं है तो दैट मीन्स द पावर ऑफ 2 इज 1।
ठीक है, 2k क्या है, 2 into k, और 2 की पावर क्या है 1. नाउ सी 2 बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m प्लस n. अगर बेसिस सेम है और वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. सो 2 रेज टू पावर k प्लस 1 एंड प्लस 1, k प्लस 1 ये और साथ में प्लस 1 इंटू k प्लस 2. उसके आगे नाउ 1 प्लस 1 विल गिव यू 2, दैट इज 2 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू k और नीचे प्लस 2. ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड यही है, 2 इंटू के, 2 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू k, या फिर k को आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. k इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 2. ठीक है, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, जिसको आपने प्रूव करना था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट में हैंस प्रूव मत लिखे, यहां पे आप लोग को लास्ट में लिखना है therefore p of k plus 1 is true, कि p of k plus 1 आपको क्या कर चुके हैं, आप प्रूव कर चुके हैं कि वो ट्रू है. बट वेन एवर p of k is true, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया है, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट therefore p of k plus 1, ऐसे करके, ऑफ मतलब ब्रैकेट, p of k plus 1 is true whenever p of k is true, full stop. Hence by the principle of mathematical induction, p of n is true for all natural numbers. I'm repeating, therefore p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Hence by the principle of mathematical induction, p of n is true for all natural numbers. तो ये आप लोगों ने लास्ट में 2 लाइंस की जो स्टेटमेंट है वो जरूर लिखनी है. And with this, this question is over. This whole exercise is based upon this principle and the very three steps. Put n equals to 1 and prove that. Put n equals to k and assume that that is true. And for third step, put n equals to k plus 1 and prove that the given statement is true. Alright. So again today we have done this question. In the next session we'll be coming with another question from this exercise. So till then, thank you, take care and have a nice day.